Hello students, my name is Dr. Ravi Bogna. I have done postgraduate diploma in tourism and travel industry management in 1998. Then after that I have completed master tourism management first class. And in 2005 I have started my career in economics, and 2005 to 2007 I have completed economics, MA economics. I have done PhD in 2011 from HNB Gurgaon Central University. I have qualified UGC NET in 2014, and I have done B.Ed from Kurukshetra University. I have taught more than 5,000 students in economics in Dehradun. I have taught class 9, 10th, 11th, 12th, BBA, MBA, BCom, MCom, and MA economics students in Dehradun. So the video which I am uploading in my YouTube channel, it is beneficial for those faculty members who are preparing for competitive examination like Uttarakhand Public Service Commission, like Bihar Public Service Commission, like Kendriya Vidyalaya, and Bihar Public Service Commission as assistant professor, those who are preparing for it. These videos are very beneficial for us, and especially class 11th and 12th. So today my topic is the relationship between AC, AVC, AFC and MC. I am teaching you the cost chapter, and I am teaching the cost chapter, the book Microeconomics. So this topic is very important. Relationship between AC, AVC and MC. तो देखिए मैं इसको बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे. तो यहाँ लिखिए O, यहाँ लिखिए X और यहाँ लिखिए Y. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ MC. तो देखिए ये गया आपका मार्जिनल कॉस्ट, ये गया आपका मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट एज यू नो डैट इट शेप इज यू शेप, और यू शेप इसलिए होता है बिकॉज ड्यू टू रिटर्न्स टू फैक्टर्स. और ये आपने गया, ये है एवरेज फिक्स कॉस्ट. एवरेज फिक्स कॉस्ट मैंने इसका नाम किया XA, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ XA. ओके, ये गया एवरेज फिक्स कॉस्ट. इसका शेप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इसका शेप कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. बिल्कुल स्ट्रेट बनाएगा आप इसे. इसका शेप कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है. इसके बाद मैंने आई हैव ड्रॉ AVC. AVC का शेप होता है यू शेप. AVC का शेप कैसा होता है? यू शेप होता है. मैं यहाँ पे B करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ XB. और उसके बाद देन आफ्टर आई विल मेक MC, मार्जिनल कॉस्ट, C और XC. अब देखिएगा स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव कंप्लीट दिस डायग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी दैट दिस इज एवरेज फिक्स कॉस्ट, इट्स शेप इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. This is average variable cost, its shape is U shape, and this is marginal cost and its also shape is U shape. Okay, this is AC, sorry, this we call AC, this we call MC. एक बार दोबारा समझ लीजिए, ये जो डायग्राम है ये है MC का. This is average fixed cost, this is AVC and this is AC. I have write A, B, C, XA, XB, XC. Now I will explain one by one this diagram in very proper manner. If you learn this diagram, if you understand this diagram, then you can write in the examination in very proper manner. And if you don't know how to make this diagram, then it is very difficult to learn it. You haven't learned it, but you have to understand it, how we have to explain it. Now please write down first point, लिखिए both AVC and MC is derived from TVC. Both AVC and MC is derived from what? दोनों जो AVC है और जो MC है is derived from TVC. वो कहाँ से derived हो रहे हैं? TVC से हो रहे हैं. नंबर टू पॉइंट, आप ये देख रहे हैं XA. जो XA पॉइंट है इसको हम बोलेंगे, XA को बोलेंगे आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग टू मिनिमम पॉइंट ऑफ MC कर्व. इसको बोलेंगे हम आउटपुट corresponding to हम इसे बोलेंगे आउटपुट corresponding to minimum point of MC curve. तो जरा इसको समझ भी लीजिए. MC कर्व, ओके, MC कर्व की स्पेलिंग बिल्कुल सही बना दी, CURVE मीन्स
जो ये एक्स ए आउटपुट है करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम पॉइंट ऑफ, ये मिनिमम पॉइंट है एमसी का, ये किसका मिनिमम पॉइंट, ये एमसी का जो है मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट का क्या है, मिनिमम पॉइंट है। एक्स ए इज द आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम पॉइंट ऑफ एमसी कर्व। अब आइए एक्स बी, बहुत आसान है। एक्स बी को आप, ये जो एक्स बी है इसका मिनिमम पॉइंट क्या ए बी सी है, तो आपने क्या रखना, आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम पॉइंट ऑफ, output corresponding to minimum point of, अब ये बताइए एक्स बी जो है मिनिमम पॉइंट क्या है इसका, मिनिमम पॉइंट है एबीसी, मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी कर्व। ओके, ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको करवा दिए। मैंने सब पहले करवा दिया, एक्स ए का जो मिनिमम पॉइंट है वो ए एफ सी है, एक्स बी का जो आउटपुट है इसका मिनिमम पॉइंट क्या है, वो क्या है, ए बी सी है। अब आ जाइए एक्स सी का मिनिमम पॉइंट क्या होगा, अब आइए यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने करवा दिए, यहाँ पे मैंने आपको एक्स ए करवा दिया, मैंने एक्स बी करवा दिया। अब आइए एक्स सी का मिनिमम पॉइंट क्या है, एक्स सी, जो एक्स सी है इसको मैंने बोला आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम पॉइंट। ये देखिए एक्स जो आपने देखा एक्स सी है, इसका मिनिमम पॉइंट क्या है, ए सी है, इसका मिनिमम पॉइंट क्या है, ए सी है, मिनिमम पॉइंट ऑफ ए सी कर्व। आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी कर्व, मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी कर्व। आपने बड़ा आसानी से समझ लिया। आपने ये समझा इसमें कि जो ये एक्स ए है इसका मिनिमम पॉइंट ए एफ सी है, जो आपका एक्स बी है इसका मिनिमम पॉइंट ए बी सी है, और जो एक्स सी है इसका मिनिमम पॉइंट क्या है, ए सी है, क्योंकि ए सी में जा रहा है तो ये मिनिमम पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब देखिए इसके बाद आपने व्हाट यू हैव टू डू, नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन द डायग्राम वेरी प्रॉपरली। नाउ थर्ड पॉइंट ये है कि व्हेन एबीसी एंड एमसी इज यू शेप, एबीसी एंड एबीसी हो गया, एसी हो गया एंड एमसी हो गया, इज यू शेप। इसका शेप कैसा है, यू शेप है, बिकॉज ड्यू टू रिटर्न्स टू फैक्टर। अब आइए स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है। व्हेन एबीसी इज फॉलिंग, जब एबीसी फॉल कर रहा है, देखिए जब एबीसी फॉल कर रहा है तो एमसी इज बिलो एबीसी, एमसी क्या है, बिलो एबीसी। व्हेन एबीसी इज फॉलिंग, देन एमसी इज बिलो एबीसी, एमसी इज क्या है, बिलो है एबीसी का। फिफ्थ पॉइंट, व्हेन एबीसी इज राइजिंग, जब एबीसी बढ़ रहा है, जब एबीसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। व्हेन एबीसी इज राइजिंग, तब क्या हो रहा है भाई, अगर एबीसी जब फॉल कर रहा है तब तो एमसी बिलो है, बट एबीसी जब बढ़ रहा है तो एमसी इसके ऊपर है, एमसी इज अबव एबीसी, प्लीज राइट डाउन इट प्रॉपरली। एमसी इज अबव एबीसी, एक बार दोबारा समझ लीजिए, जब एबीसी बढ़ रहा है तो एमसी इसके ऊपर है, एमसी इज अबव एबीसी। डायग्राम इज सेइंग, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। जब एबीसी फॉल कर रहा है तो एमसी इज बिलो एबीसी, जब एबीसी बढ़ रहा है तो एमसी इज अबव एबीसी। नाउ सिक्स पॉइंट, व्हेन एबीसी इज नाइदर फॉलिंग नॉर राइजिंग, देन एमसी इज इक्वल टू एबीसी। व्हेन, जब क्या हो रहा है, व्हेन एबीसी इज नाइदर फॉलिंग, व्हेन एबीसी इज नाइदर फॉलिंग, ना वो फॉल हो रहा है और ना वो इंक्रीज हो रहा है, नाइदर फॉलिंग और राइजिंग, देन एमसी इज इक्वल टू एबीसी, एमसी क्या है, एबीसी के बराबर है। जब वो क्या कर रहा है, ना वो क्या कर रहा है, एमसी इज इक्वल टू एबीसी एट पॉइंट बी।
तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस पहले पॉइंट में एम सी इज इक्वल टू क्या है, ए बी सी, एम सी इज इक्वल टू क्या है, ए बी सी है, क्योंकि वो क्या रहा है, व्हेन ए बी सी इज नाइदर फॉलिंग, ना वो फॉल हो रहा है ना वो बढ़ रहा है, तब क्या होगा, एम सी इज इक्वल टू ए बी सी हो जाएगा, तब एम सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। लास्ट पॉइंट मैं कराने जा रहा हूँ इसमें, दिस इज द लास्ट पॉइंट विच आई एम टेलिंग यू। लास्ट पॉइंट ये रहा कि द रेंज वेयर एबीसी इज फॉलिंग, द रेंज वो रेंज वेयर एबीसी इज फॉलिंग, वेयर एबीसी इज फॉलिंग, जहाँ पे एबीसी फॉल कर रहा है, द रेंज वेयर एबीसी इज फॉलिंग एंड एमसी इज राइजिंग, एंड एमसी इज राइजिंग। तो बताइए वो रेंज कौन सी हुई, the range where ABC is falling and MC is rising, that range between XA and the range between XA and XB। तो भैया जहाँ ये देखिए जो ये रेंज देख रहे हैं ना XA and AB, तो इसमें क्या हो रहा है, ये देखिएगा आप क्या कह रहा है मैंने, जब ABC क्या हो रहा है, ABC फॉल हो रहा है, ये देखिए ABC फॉल हो रहा है, और जो आपका ये है मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है। तो जो ये रेंज है इसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। यहाँ पे इसको रेंज बोलेंगे एक्स और ए बी, जहाँ पे ए बी सी फॉल कर रहा है और जहाँ पे एम सी इंक्रीज कर रहा है, तो उसके बीच में जो रेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स ए और एक्स बी बोलते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने आज आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से और अपने बिल्कुल बहुत ही बारीकी से मैंने आपको बताया क्या व्हाट इज़ द रिलेशंस बिटवीन ए सी, ए बी सी, ए एफ सी एंड एम सी। आप समझ गए हाउ टू राइट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11th and 12th, which I have completed today. Thanks, Dr. Bhavna.